सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस लिखना है। और तरतीब तरतूब का कोई ख्याल नहीं रखते जी प्रेसी में। अगर आपके पास रिलेटेड थीम एक लाइन है और उसी से रिलेटेड थीम दूसरी लाइन है तो फिर ठीक है, उसी के साथ जाइए। अगर रिलेटेड थीम एक लाइन है और उससे रिलेटेड थीम आखिरी लाइन है तो आपको रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आप ज़रा देख लीजिएगा। आइए जी, स्टार्ट करते हैं जी। और आपके साथ मैं ये स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड जी शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन विद यू गाइस। छोटी प्रेस है, 200-250 अल्फाज की है, नॉट मोर देन दैट। इसलिए इस पे आइए, थोड़ा सा स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कोई थीम्स रिलेटेड वगैरह हैं भी कि नहीं। आदि, क्लास में हो तो स्टार्ट करो पढ़ना। यस सर। थोड़ा सा जूम कर दें। वैसे आपको पता है अगर मैं जूम ना करूँ तो आप अपने कैमरे अपने फ़ोन से भी जूम कर सकते हैं, वो आपके लिए जूम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। Oh, खैर। okay, sir. International wars involving the United States have often emerged from a mix of security concerns, ideological commitments, strategic calculations, and economic interests. In the 20th century, America's rise as a global power brought it into major conflicts that reshaped world politics. The Cold War entrenched a policy of containment, leading to interventions justified as efforts to prevent the spread of communism, most notably in Korea and Vietnam. These wars reflected a belief in safeguarding alliances and preserving a balance of power, yet they also exposed the limits of military force in the complex local conflicts. ठीक है। ओके, आगे भी पढ़ते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा पढ़िए जी। Okay, sir. After the Cold War, the rationale for military engagements shifted but did not disappear. The Gulf War was framed as a defense of international law and regional stability, while the post 9/11 invasion of Afghanistan and Iraq were presented as acts of self-defense and counter-terrorism. In each case, American leaders invoked national security and protection of global orders. Critics, however, questioned the role of intelligence failures, regimes change, ambitions, and access to strategic resources in shaping these decisions. हम्म। पढ़ें पढ़ें आगे भी। Across the decades, Across decades, recurring themes include the tension between unilateral actions and multilateral cooperation, the moral language of democracy, promotion, and unintended consequences of prolonged conflict. Military superiority often secured swift battlefield victories, yet nation building proved far more difficult. These wars triggered regional instability, humanitarian crisis, and domestic debate within the United States itself. Ultimately, US triggered international wars illustrate the complex interplay between power, principle, and perception in modern geopolitics. और है जी। चलिए, एक दफा आपने पढ़ लिया है, अब एक दफा पढ़ के थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा जी। अच्छा जी, यूएस वॉर्स के बारे में बात की जा रही है। आइए अब दूसरी दफा फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि आपने 3 दफा प्रेसी के पैसेज को पढ़ना होता है, उसके बाद आपने इसे डिस्कस करना होता है। तो चलिए जी, एक दफा फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। और तीसरी दफा मैं खुद पढ़ूंगा, इसमें हम थोड़ा सा इसके थीम्स को जोड़ेंगे अगर कोई होंगी तो। और उसके बाद क्या है कि आप प्रेसी बैठ के करेंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। चल चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। कौन पढ़ेगा? अरिका, आप पढ़ सकती हैं, पढ़िएगा जरा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। International wars involving the United States have often emerged from a mix of security concerns, ideological commitments, strategic calculation, and economic interest. In the 20th century, Americans' rise as a global power brought it into a major conflict that reshaped world politics. The Cold War entrenched a policy of containment, leading to the intervention justified as effort to prevent the spread of communism, most notably in Korea and Vietnam. These wars reflected a belief in safeguarding alliances and preserving balance of power, yet they also exposed the limits of military force in complex local conflict. After ओके। the अरिका वेट, थैंक यू वेरी मच। एक एक पैराग्राफ अब सारे पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अरिका। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जितने भी कन्फ्लिक्ट्स में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है वो आमतौर पे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसने इन्वॉल्वमेंट की है, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स या स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से की है। 20वीं सेंचुरी में क्या होता है, अब यहाँ पर देखें तो ये क्या कर रहा है कि एक प्रॉपर तरतीब के साथ चल रहा है। पहले 20वीं सदी के कन्फ्लिक्ट्स के बारे में इसने स्टार्ट किया है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? कहते हैं जी अमेरिका ग्लोबल पावर एज अ राइज होता है, और उसके बाद क्या होता है कि मेजर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसमें जी कोल्ड वॉर का एरा आता है। कोल्ड वॉर के बाद आपके पास आ जाता है जी कम्युनिज्म के स्प्रेड को ये रोकते हैं, जिसमें कोरिया और वियतनाम की वॉर वगैरह
शामिल होती है। ये चीजें तो आपको पता ही है। कहते हैं लेकिन दीज वॉर्स रिफ्लेक्टेड अ बिलीव इन सेफ गार्डिंग अलायंसेज एंड प्रिजर्विंग अ बैलेंस ऑफ पावर। यानी ये तमाम जो वॉर्स हुई, इनका एक मकसद था कि बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व किया जा सके। अब आप सबको बैलेंस ऑफ पावर का मतलब पता है ना? अहमद, डू यू नो ना बैलेंस ऑफ पावर का जो मीनिंग है? मुझे बताइएगा। अभी आप में से अगर किसी को नहीं समझ आता तो हमारी क्लास में जी शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मैट्रिक फेल हूँ। ऐसे ही है ना? तो कोई मसला नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। सो आप पूछ सकते हैं, आपको जहां पर भी समझ नहीं आता जो भी जी। सर यहाँ पे मुझे आपकी आवाज जरा नहीं आ रही। मुझे लग रहा है अक्सर रशीद है, लेकिन अक्सर आपकी आवाज नहीं आ रही जरा भी मुझे। बस सर की आवाज आई। सर यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट बता दे प्लीज। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। जरा भी आवाज नहीं आ रही। बस ये अब बैलेंस ऑफ पावर है। थोड़ा अपना माइक एडजस्ट कीजिए, या अगर हेडफोन्स लगाए हैं या ईयरपॉड्स लगाए हैं तो उसे रिमूव करके एक दफा बोलें, या माइक को एडजस्ट कीजिए प्लीज किसी तरीके से। आई एम सर नॉट। एम आई ऑडिबल नाउ? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। सर मैंने कहा बैलेंस ऑफ पावर का बता दें यहाँ पे। बैलेंस ऑफ पावर क्या मतलब? बैलेंस ऑफ पावर का मतलब बता दूं। बैलेंस ऑफ पावर से मुराद होता है कि जब भी आप, अब देखिए ना, जो है यूएसएसआर का एक्सपेंशन होता जा रहा था, चाइना भी आपके पास कम्युनिज्म के फ्लैग के अंडर आ गया, ठीक है। उसके बाद कोरिया भी ऐसे आ गया, वियतनाम भी ऐसे आ गया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात हम कर रहे हैं, सही है। तो क्या होता है कि इस सिनेरियो में ना, ये तमाम कन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका का एक परसेप्शन ये था कि इसने इनके विरोधियों को, क्या कहते हैं जी, इनके एनिमीज को सपोर्ट किया। जैसे कोरियन नॉर्थ कोरिया एक्सपेंड करता जा रहा था, तो इसके एनिमी को, ठीक है, साउथ कोरिया को अमेरिका ने क्या किया कि सपोर्ट किया, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर को प्रिजर्व, बैलेंस ऑफ पावर को ये मेंटेन कर सके, और एक ही पावर जो है ना डोमिनेट ना कर सके। यहां पर ये है जी बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ताकि हम आगे, क्योंकि हमने ये डिस्कस करना है तो अपने माइंड में ही रखते हैं। क्या प्रेसी में हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं? बताइएगा। नहीं नो सर। सर। ये चीज याद रखनी है, अभी इस पर डिस्कस होना है, ठीक है। अच्छा जी, वेरी गुड जी, आगे चलते हैं जी। सेकंड पैराग्राफ, थैंक यू वेरी मच हादी एंड रिका पढ़ने के लिए। चलिए हम किसी और को देते हैं। अहमद, व्हाई डोंट यू रीड इट फॉर अस, द सेकंड पैराग्राफ? व्हाई डोंट यू रीड द सेकंड Okay, sir. पैराग्राफ? After the Cold War, the rationale for military engagement shifted but did not disappear. The Gulf War was framed as a defense of international law and regional stability, while the post 9/11 invasions of Afghanistan and Iraq were presented as acts of self defense and counterterrorism. In each case, American leaders invoked national security and the protection of global order. Critics, however, question the role of intelligence, failures, regime change ambitions, and access to strategic resources in shaping these decisions. आफ्टर कोल्ड वॉर रैशनल फॉर मिलिट्री एंगेजमेंट शिफ्टेड, ठीक है। कोल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि मिलिट्री एंगेजमेंट का जो पर्पस है वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक जो इनका माइंडसेट था वो डिसअपियर नहीं होता वॉर के बारे में, लेकिन ये थोड़ा सा शिफ्ट होता है। कैसे जी? द गल्फ वॉर्स होती हैं, ठीक है। और गल्फ वॉर्स इस वजह से होती है कि इंटरनेशनल लॉ के डिफेंस। अभी देखिए एग्जांपल्स है ना, तो आप इन एग्जांपल्स को लिखेंगे नहीं, इन्हें ओमिट करने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है। गल्फ वॉर जी इंटरनेशनल लॉ के लिए, डिफेंस के लिए होती है, ठीक है। पोस्ट 9/11 क्या होता है, और इराक, अफगानिस्तान और इराक पर जो इन्वेजन होता है वो जी सेल्फ डिफेंस के लिए इन्होंने ये इसलिए किया था ना, ठीक है। और काउंटर टेररिज्म वगैरह के लिए, ठीक है। इन ईच केस अमेरिकन लीडर्स इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी। हर केस में जी अमेरिकन लीडर्स थे, एक ही ओनर हो रहे थे नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है, और ग्लोबल ऑर्डर। अच्छा, अभी ईरान में भी तो यही ये बात कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं, कि ग्लोबल ऑर्डर और प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी, और यही जी यहाँ पर मेंटेन करें। वो ट्रम्प का ट्वीट आपने पढ़ा था ना, क्या उसने किया था रात को? बड़ा अजीब सा ट्वीट था। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हाउ एवर क्रिटिक्स, ठीक है, क्वेश्चन द रोल ऑफ इंटेलिजेंस फेलियर। और क्रिटिक्स बार बार ये कहते हैं कि वो जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और ये जो सारे इनके जो एक नैरेटिव ये पेश करते थे, ये आपके पास रिमशा बेटा एक इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पे हमें उभरता हुआ नजर आता है। कि जब अमेरिका ने कहा जी कि इनके पास ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सदाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा निकला, सही है। तो इसका मतलब है कि यूएस की इंटेलिजेंस की फेलियर हमें यहां पर देखने को मिली, और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स अनअवॉइडेबल हो गए, सही है। तो ये आप यहां पर बता, और आपको पता है 9/11 की भी अगर आप बात करते हैं नमरा, तो 9/11 के बारे में भी अगर आप देखें तो बहुत से थ्रेट्स पहले ही रिसीव इन्हें हो चुके थे। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द थ्रेट्स इन नंबर्स, यानी इन नॉट इन फ्यू नंबर्स, बट द थ्रेट्स वर इन हंड्रेड्स। इनका अगर तादाद आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थ्रेट्स इन्हें रिसीव हो चुके थे, और इन्होंने देखा ही नहीं था, ठीक है। और फिर जब ये हो चुका तो फिर इन्होंने वो थ्रेट्स निकाले, और जाकर देखा जी अच्छा जी ये थ्रेट्स इन्हें मिले थे। तो यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस फेलियर है इन्हें देखने को मिलता है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। चलें आगे पढ़ते हैं जी। कौन पढ़ेगा जी लास्ट पैराग्राफ? एनीवन? सर मैं पढ़ दूं? आप पढ़ दें, अक्सर शीट बिल्कुल पढ़ दें। Across decades,
The recurring themes include the tension between unilateral action and multilateral cooperation, the हम्म the moral language of democracy promotion, and the uh, unintended consequences of prolonged conflict. Military superiority often secured swift battlefield victories, yet nation building proved far more difficult. These wars triggered regional instability, humanitarian crises, and domestic debates within the United States itself. Ultimately, US triggered international wars illustrate the complex interplay between power, principle, and perception in modern geopolitics. अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो आप सबने जो सबसे पहला प्रेसी जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो प्रेसी का सबसे पहला जो आपके पास सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं? कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीवन? The topics and टॉपिक सेंटेंस, वेरी गुड। और टॉपिक सेंटेंस आपके पास ऐसा होना चाहिए जो कि आपके पास पूरी की पूरी प्रेसी के थीम को ग्रास्प करे। चलिए मैं एक दफा पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जी। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, राइट? फर्स्ट टाइम पे आपको 30-40 समझ आती है परसेंट, सेकेंड टाइम पे आपको 60-65%, 70%, 80% भी आ सकती है। थर्ड टाइम जब आप पढ़ते हैं ना तो थर्ड टाइम आपको बेहतर समझ आती है। सो चलिए जी पढ़ देते हैं जी। International wars involving the United States have often emerged from a mix of security concerns, ठीक है, ideological commitments, strategic calculations and economic interest, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर देखें तो आपके पास, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने जो पहला सेंटेंस लिखते हैं वो होता है जो टॉपिक सेंटेंस, वो थीम की अक्कासी करता है, यानी पूरी की पूरी प्रेसी की तलखीस की अक्कासी करता है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, इस पूरे पैराग्राफ में हमने यही देखा कि अमेरिका ने फाइका जो वॉर्स कंडक्ट की हैं सिक्योरिटी की वजह से, मिस कैलकुलेशंस की वजह से, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स की वजह से की। तो क्या हम इसे टॉपिक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? मुझे बताइएगा, सारे जरा मुझे बताए तो सही। ये जो हाईलाइटेड एरिया है, रिमशा क्या लगता है, क्या हम ये इस हाईलाइटेड एरिया को टॉपिक सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल, सोच समझ के बोलिएगा जरा, कर सकते हैं? अब जैसे ही मैंने सोच समझ के कहा ना, आप में से कुछ के यस नो में जी सर कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और बताइए, सारे मुझे बताइए, आपने क्या लगता है, आपको कर सकते हैं? जैन कह रहे हैं जी नो कर सकते हैं, क्यों नहीं जैन कर सकते, क्या रीजन है? आशा भी कह रही है नो, व्हाई व्हाई वी कैन नॉट यूज दिस? हाँ रिफ्रेश कर रहे हैं इनसे थोड़ा। सर, हाँ हाँ। टॉपिक सेंटेंस में सारी की सारी प्रेसी का जो थीम है वो नजर आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस लिखा है। तो प्रेसी लिखते वक्त हम लोग सारे पैराग्राफ का जो क्रक्स होगा वो अपने टॉपिक सेंटेंस में शो करेंगे। क्या है पूरे के पूरे पैसेज का क्रक्स आपके मुताबिक, बताइए। सर, यही के रीजंस क्या थी इंटरनेशनल वॉर्स की, तो वो तो पर्टिकुलरली जिसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। लिखी हुई है ना यहाँ पे भी। हम्म। तो ये कैसे एक पैसेज, चलिए मैं आपसे थोड़ा सा और सवाल एक और पूछता हूँ, अब सोचिएगा थोड़ा सा इस पे आप। चलें अब मुझे बताइए, हम इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यूएस ट्रिगर्ड इंटरनेशनल वॉर्स इलस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन पावर, प्रिंसिपल, परसेप्शन। अब मुझे बताइए कौन सा वाला आप इस्तेमाल करेंगे, बताइए। ग्रीन पिल के साथ जाएंगे जी या येलो पिल के साथ, बताएं जरा आप। अब मुझे बताइए, सोचिए थोड़ा, देखें इन दोनों को, मैंने आपके सामने ने ओपन कर दिया है, सोचें जरा, देखते हैं क्या आप कहते हैं। नहीं नहीं सहर, ऐसा नहीं होता। आपके पास टॉपिक सेंटेंस में नेसेसरी होता है कि आप एक क्रक्स को रिफ्लेक्ट करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, येलो वाला स्ट्रक्चर ही ये है। ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। सहर बेटा, क्रक्स आपके पास जो होता है ना हमेशा टॉपिक सेंटेंस में, बॉडी पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो भी, और थीसिस का जो प्रेसी का होता है टॉपिक सेंटेंस, ठीक है, ये दोनों सेम ही है दरअसल। बॉडी पैरा आप जब प्रेसी भी बना रहे हैं तो पैराग्राफ ही बना रहे हैं ना, तो आपके लिए बेटा टॉपिक सेंटेंस और उसमें क्रक्स को रिफ्लेक्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है, सही है। सो ये इस तरीके से नहीं रहेगा, ओके सर। अच्छा चलिए मुझे अब आप बताइए, अच्छा सर शी वॉज सेइंग कि ऑल प्रेसिस क्रक्स, लेकिन आप एक पैराग्राफ का ही टॉपिक सेंटेंस बता सकते हैं ना? मुझे नहीं समझ आ रही, आई एम सॉरी जी। आप इंग्लिश में बता दें या वैसे बता दें, ये अक्सर मैं कहता हूँ कि ऐसी जो उर्दू होती है ना मुझे समझ नहीं आती, आई एम सॉरी फॉर दैट जी। अच्छा चलिए, अच्छा ये दोनों सेम ही है, आप अगर इसे देखें तो ये जो येलो वाला है
ये इसका थोड़ा ग्रीन वाले का कंडेंस्ड वर्जन है। पढ़े इसे जरा, देखें तो सही। फाइका क्या कहती है जरा, ये फाइका पढ़ें तो सही। ये जरा ग्रीन वाला पढ़ें और फिर येलो वाला पढ़ें तो सही जरा। International wars involving the United States have often emerged from a mix of security concerns, ideological commitments, strategic calculations, and economic interests. ठीक है जी, ये चीजों की वजह से इंटरनेशनल वॉर्स, ठीक है, यूएसए ने इंटरनेशनल वॉर्स में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, नीचे पढ़ दें जरा। Ultimately, US triggered international wars illustrate the complex interplay between power, principle, and perception in modern geopolitics. देखिए, मोर और लेस ये कंडेंस्ड वर्जन है, सो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं कीजिएगा। इसे थोड़ा सा जो है ना आपने अपने अल्फाज में लिखना है। वो इसे कहते हैं ना, एक इसे नाम हमने दिया था, क्या कहते हैं भला इसे, कोई मुझे बताएगा नमरा? इसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ठीक है, पैराफ्रेजिंग आपने इसे करना है। ठीक है, चलें जी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आप करेंगे, बल्कि मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई है थोड़ी बहुत, मेरे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। पैसेज करेंगे अटेम्प्ट, क्या कहते हैं? लाइफ में आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे बताइए, हो जाएगा ये? चले कोशिश तो करें जरा, देखते हैं क्या आप बनाते हैं। ठीक है, इसका जरा पैसेज पैसेज बनाइए। ये करीबन 250 वर्ड्स हैं जी, गिनिएगा ना। ठीक है, ये आपका टाइम मैं बचा देता हूँ, 250 को भाई 3। ये ग्रुप में भेज दें। यहाँ पर ये देखो सामने तो है। चलिए ठीक है, वैसे वो मैंने निशान निकालने होते थे। नहीं नहीं, वो बच्चे पता है, आप यहाँ पर लगा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। वो पता है क्या है, आप में से ना बड़े लीव कर जाते हैं फिर, क्योंकि इसके बाद भी हमने एक चीज को स्टडी करना है। ठीक है, हमने पैसेज पैराग्राफ के ऊपर ना थोड़ी डिस्कशन करनी है। पैराग्राफ भी बिल्कुल ऐसा टेढ़ा सही है। ठीक है, सो उसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज भी अप्लाई हो सकती हैं, जो मैं पैसेज आपको भी करना है हमने पैराग्राफ। तो इस वजह से ये जरा कीजिए इसे। आपको मैं 15 मिनट दे रहा हूँ जी, 8 बज के 10 मिनट तक का टाइम है। इसे जरा पैसेज करें। 80 कितने वर्ड्स इसके बनेंगे? 250 को 3 पर डिवाइड करें, क्या आंसर? Sir, 83, 84. 83, 84। देखिए ना, प्रेस ही किए हुए मुद्दतें हो गई हैं हमें भी। 250 डिवाइडेड बाय 3, 83, 84, हाँ करीबन वही। प्लस माइनस 5 चल जाते हैं जी। ठीक है, तो आपके 88 तक 90 तक जा सकते हैं अल्फाज, कोई मसला नहीं है। 76 तक जा सकते हैं, ये अप एंड डाउन थोड़ा चल जाता है। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सो ये, और इसके बाद जी टाइटल भी आप खुद ही जरा दें, मैं देखता हूँ। इट्स मोर लाइक अ लाइव टेस्ट, सो इसे अटेम्प्ट कीजिए एवरीबॉडी। कोई लीव नहीं करेगा जी? सर इसको साफ कर दे। साफ कर दूं? ओके जी, ये लें। आ, ये लें जी, ये आपके सामने नई नवेली प्रेस ही ओपन हो गई है। ये लें। ठीक है, ये तो पैसे है। ओके जी, ये लीजिए।
चलें जी, आई एम वेटिंग एवरीबडी, 9 मिनट रह गए हैं, इतने स्लो नहीं बनना, जल्दी जल्दी कीजिए जी। आमना आप कर रही हैं, बताइएगा मुझे। सहर, आर यू मेकिंग द प्रेस? और प्रेसी बनाकर जी ग्रुप में फौरन आपने भेज देनी है, टाइटल्स भी लिख दीजिएगा। ठीक है, टाइटल्स के बाद फिर टाइटल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं फिर। आमना, अक्सा रशीद, आर यू मेकिंग द प्रेसी? किरत बेटा, नबीहा किधर है जी? अच्छा, ये लड़की इतनी ज्यादा पोटेंशियल है ना, नबीहा की, और इतनी ये कंसिस्टेंट है, लेकिन ये मुझे जरा क्लास में नहीं नजर आती। सकीना, आर यू मेकिंग द प्रेसी? जैन बना रहे हो प्रेसी? बताइएगा। सहर, शफा, पाइका, अरीका, अहमद, नमरा भट्ट, अदीला। हाशिर किधर है जी? हाशिर नहीं है क्लास में। हाशिर, हाशिर नहीं है। हादी है क्लास में। हादी किधर है गुम हुआ? हाशिर, कोई आइडिया है? सर मेरे से अभी बात हुई थी क्लास से कोई आधा घंटा पहले। आज आज मैसेज किया था, मैं भी डाउट में था कि क्लास होनी है कि नहीं आज। यार बात पता क्या है कि आई वॉज लिटिल बिट वरीड अबाउट यू। तो मुझे ऐसे कुछ अच्छा नहीं था लगना कि आज मेरे ख्याल से हमने ज्यादा नहीं पढ़ा कुछ, तो वो फिर अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने क्लास रखी है। अच्छा, बस यस। वो कंफ्यूजन थी आज, इस वजह से शायद वो चला गया होना काम किसी। चल, कोई मसला नहीं। यस सर, बट आज बनती नजर नहीं आ रही। क्या नहीं बनती नजर आ रही? प्रेसी? चलो कोई मसला नहीं है जी, जैसी बनानी है बनाए, मुझे 8 मिनट के अंदर अंदर प्रेसी आपकी रिसीव हो जानी चाहिए। सही है। और सारे पीडीएफ बनाकर भेजिएगा, इमेजेस ना भेजिएगा, पीडीएफ बनाकर आपने भेजनी है। तैयबा बेटा जल्दी, तहमीना, आमना, वन ऑफ द बेस्ट प्रेस ही आपकी होनी चाहिए। तो द प्रेशर इज ऑन योर शोल्डर्स राइट नाउ। देखते हैं जी आप बेस्ट बना पाती हैं ये नहीं। और कठिन वाला पेन सबने ले आना है उर्दू के लिए जी, प्लीज। कहीं पर समझ नहीं आएगा तो प्लीज प्लीज आस्क एनीथिंग, ठीक है? मैं बैठा हुआ हूँ आप सबके लिए।
ऑलराइट जी एवरीबॉडी, टाइम्स अप जी। 2 मिनट रह गए हैं। सर 5 मिनट दे दें, अभी बहुत टाइम लग जाएगा। 5 मिनट दे देंगे। 5 मिनट दे दूं और? यस सर, चले, एटलीस्ट 5 मिनट। 8:15 तक दे देता हूँ टाइम, चलें। कोई मसला नहीं है जी। शफा बेटा, वो प्रेसी वाला ऐसे वाला जो ग्रुप है ना, उसमें भेज दें। अब मैं एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं बनाना चाह रहा, जैसे वो मैंने सीएसएस में आपका बनाया था जब आप कर रहे थे, ऐसे का अलग, प्रेसी का अलग। तो कहते हैं तो बना दूंगा, कोई मुझे मसला नहीं है, लेकिन मुझे होता है कि बच्चे ही ना कहें कि सर जी इतने ग्रुप, ग्रुप में भेज दें जी। आप सबके पास 6 मिनट और हैं जी। मैंने टाइम आपको आपकी मर्जी का दिया है। अब प्रेस ही मुझे मेरी मर्जी की चाहिए अच्छी। और अगर किसी की ना हुई तो मैं सारी कट कर दूंगा। एक छोटी सी मिस्टेक अगर अब मुझे नजर आई, कॉमा से पहले बट नहीं लगाया, कॉमा आपने दरमियान, यानी बट से पहले कॉमा नहीं लगाया, कॉमा दरमियान में है, ये मिस्टेक्स अगर मुझे किसी की आ गई नजर, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसे काट दूंगा उसका प्रेसी का पूरा, और वो फिर करेगा। सर ये थोड़ी सी समझने, टेंशन बिटवीन यूनिलेटरल इलेक्शंस एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। कौन अभी आया है जी लीव करके? आज सर कौन सा पैराग्राफ है सर ये कौन? थर्ड पैराग्राफ का स्टार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। रिकरिंग थीम्स इंक्लूड टेंशन बिटवीन यूनिलेटरल इलेक्शन एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। अक्रॉस डेकेड्स रिकरिंग थीम्स इंक्लूड, रिकरिंग थीम्स यानी जो वॉर्स हुई हैं, ठीक है वो, इंक्लूड द टेंशन बिटवीन यूनिलेटरल एक्शन एंड मल्टीलेटरल कॉपरेशंस, द मॉरल लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी, the moral language of democracy promotion and unintended consequences of prolonged conflicts। अच्छा देखो, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने भी ये डेकेड्स में कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हुए हैं ना, तो इनमें जो है ना आपके पास कुछ थीम्स बार बार रिपीट होती थी, और वो क्या थी जी? आपके पास यूनिलेटरल यूएसए के जो एक्शंस होते थे, ठीक है, उसमें कन्फ्लिक्ट और मल्टीलेटरल कॉपरेशन। यानी एक तरफ तो ये बात करता है जी हमने कॉपरेशन करनी है, ठीक है, एक तरफ तो डेमोक्रेसी का रोना रो रहा है, दूसरी तरफ क्या कर रहा है कि यूनिलेटरली एक्शंस तमाम कर रहा है। जैसे बुश ने कहा था जी कि हम यूएन ही नया बना देंगे,
मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जी आपके सर। पास वैसे जहां पर एक तरफ डेमोक्रेसी का अलमबरदार बनता है, ठीक है, उस तरफ दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है, यूनिलेटरल एक्शंस ले रहा है। और इसमें इसका यानी ये जो ये बातें करता है तमाम इन कन्फ्लिक्ट्स में, यानी कन्फ्लिक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि यूएसए के इस पॉइंट ऑफ व्यू में या इस ओपिनियन में एक तजाद देखने को मिला है। श्योर सही सर। है। चलें जी, 3 मिनट रह गए, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलना हादी आपको, छोड़ दीजिए। अब मैं आई वॉन्ट गिव यू एक्स्ट्रा टाइम। वेरी गुड सहर। सहर इधर नहीं था सेंड करना, पीएमएस वाले ऐसे में मैंने आपको सहर इसमें ऐड कर दिया है। सहर आप इस ग्रुप में हैं, जिस जहां से आपने ज्वाइन किया ना, वो तो ऐसे का ग्रुप पुराना हो गया, वो तो ऐसे वाला ग्रुप सीएसएस का ग्रुप था। ग्रुप्स पता नहीं कैसे डिसॉल्व करते हैं, मुझे वो नहीं आता। सहर वो देखिएगा पीएमएस एसए के नाम से है, अगर आप उसमें कर दें तो। ये मैं आपको फिलहाल अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं ना ये चेक कर लूँ। लेकिन हाँ जी बिल्कुल जी, आपने कर दिए सेंड, गुड वन। हाँ जी वो रिसीव हो गया जी, डोंट वरी। आपने ऊपर नाम भी लिख दिया है, गुड वन जी। चलें जी, टाइम्स ओवर एवरीबॉडी, 1 मिनट रह गया है, सेंड करना शुरू करें जी मुझे। अभी तक मुझे शफा ने भेजा है, कीरत ने भेजा है, सहर ने भेजा है, दैट्स ऑल। बाकी सारे किधर हैं जी? अरिका क्यों नहीं भेजा? फाइका, आमना, अरिका ने भेज दिया, गुड वन जी। ओके, अहमद अभी तक क्यों नहीं भेजी प्रेसी जी? अहमद साहब सेंड करें मुझे प्रेसी, जैसी भी हुई है मुझे अभी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है तभी तो चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करें कहाँ पर नहीं। आयशा भेज दी है प्रेसी? आयशा ने नहीं भेजी। आयशा सर मुझे बस प्रेस नीट कर रही हूँ, थोड़ी सी रह गई है, अभी सेंड कर रही हूँ। रीड कर रहे हैं क्या मतलब? जी सर, वो पहले थोड़ी रफ बनाई थी ना। बेटा एक ही दफा बना लिया करें, बस रफ पॉइंट्स लिख लिया करें। आमना अभी तक बेटा प्रेसी नहीं है ये आपकी तरफ से? अक्सर रशीद प्रेसी? सब बस वेट कर। नहीं जी, 1 मिनट में नहीं आएगी तो प्लीज ना ना सेंड कीजिएगा। आई वांट चेक योर प्रेसी आफ्टरवर्ड्स। सो प्लीज इफ एनीबडी वांट्स कि मैं उसकी प्रेसी टाइमली चेक करूं और उसे सेंड कर दूं, तो प्लीज आपके पास 1 मिनट है, बल्कि अब कुछ चंद सेकंड्स रह गए हैं। आफ्टर दैट आई वांट टू रिसीव द प्रेसी प्लीज। I'll be straightforward and I'll be blunt with the rules this time, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आपकी मतलब का टाइम मैंने एक्सटेंड किया है। सो 8:15 तक टाइम है जी, कुछ सेकंड्स आपके पास रह गए हैं, करीबन 20 से 25 सेकंड्स, दैट्स ऑल। रिमशा बेटा अभी तक ऐसी प्रेसी नहीं आपकी आई? मैं जिसका नाम लेता हूँ प्रेसी आ जाती है, ये क्या बात है? नमरा प्रेसी नहीं अभी तक आई। सकीना, तहमीना, जैन, as soon as the clock, चलें जी बस, टाइम ओवर एवरीबॉडी, आई वॉन्ट बी रिसीविंग योर प्रेसी नाउ। चले 1 मिनट की आपको और एक्सटेंशन दे रहा हूँ, कोई नहीं, 1 मिनट की और एक्सटेंशन दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं मैं रिसीव करूंगा। 16 तक एक्सटेंशन दे रहा हूँ, 1 मिनट आपके पास और है, सेंड कर दें और एल्स। जैन अभी तक सेंड नहीं की यार, क्या कर रहे हो आप जैन? अहमद, नम्रा ने कर दिया सेंड जी। ओके, सर थोड़ी मैं बनवाते हैं, ऐसे अच्छी नहीं बनती। बेटा यही तो मुझे टाइम प्रेशर आपके ऊपर बनाना है। 15 मिनट में 20 मिनट में आपकी प्रेसी हो जानी चाहिए, पढ़ने में भी तो 10-15 मिनट आपके लगने हैं, 40-50 मिनट में प्रेसी इतनी देर में होती है। अब देखिए हमारे पास 45 मिनट्स हो चुके हैं, बस जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, प्लीज कीप योर प्रेसी टू योर सेल्फ, आई वॉन्ट बी चेकिंग योर प्रेसिज नाउ। आइए जी आगे चलते हैं जी, ठीक है। सो ये जी पीएमएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, ठीक है, आपके सामने टॉपिक है जी। इसे पढ़ें जरा, जैन पढ़ें जरा इस टॉपिक को। व्हाट इज द टॉपिक? जैन अहमद, तहमीना पढ़ें टॉपिक को, जैन की आवाज नहीं आ रही, तहमीना मत सेंड कीजिए, आई वॉन्ट बी रिसीविंग, मैं खुद ही यहाँ से डिलीट कर दूंगा फिर ऑटोमेटिकली, सो प्लीज डोंट सेंड राइट नाउ। अच्छा जी, कोई पैसेज है जी, आर ह्यूमन बींग्स नेचुरली सेल्फिश और कोऑपरेटिव? मेरी आवाज आप सबको आ रही है? मुझे बताइए, तो पढ़ क्यों नहीं रहे जी? जी सर आ रही है। हाँ तो पढ़ क्यों नहीं रहे आप? जी तहमीना बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? सर एक्चुअली में मेरे ना मोबाइल में मेमोरी फुल हो गई थी, तो वो कैमरे में पिक्चर ही नहीं बन रही थी, मैं बस उसी में लगी हुई थी, मैं आपको अब सेंड ही नहीं कर सकी वैसी। नहीं अपना सेंड कीजिए। अच्छा, आर ह्यूमन बींग्स नेचुरली सेल्फिश और कोऑपरेटिव? सो यहां पर देखें जी, साफ बात पूछी जा रही है कि ह्यूमन बींग्स नेचुरली क्या हैं, क्या वो सेल्फिश हैं या वो कोऑपरेटिव हैं? आप सबको क्या लगता है?
आमना नहीं, आई वॉन्ट बी चेकिंग योर प्रेसी प्लीज। द रूल्स आर सेम फॉर एवरीबॉडी, प्लीज डोंट सेंड द प्रेसी। इट इज अ रिक्वेस्ट, फिर सर ऐसे बस शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, प्लीज एक्सेप्ट कर लें। हो ही तो सकता मैंने है। तो नेट भी नहीं की, वैसे ही एंड कर दिया आपको। सर वो ऐड आ जाती है, नेट चला होता है तो थोड़ा टाइम हाँ लग जी जाता सर, वो तो ऐड आ जाती है, 2 ऐड आती हैं। चलें जी, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आर ह्यूमन बींग्स नेचुरली सेल्फिश और कोऑपरेटिव? जब आपको पता है दो एड्स आती हैं तो आप पहले ही 8-14 पर ही लिखना बंद कर दें। एड्स के ऊपर अब आप मलबा अपना फेंक रहे हैं। चलें इस टॉपिक की तरफ आइए जी। आर ह्यूमन बींग्स नेचुरली सेल्फिश और कोऑपरेटिव? हाँ जी, क्या लगता है आपको, ह्यूमन बींग सेल्फिश है या कोऑपरेटिव है? है। व्हाट डू यू थिंक? सेल्फिश। सेल्फिश। सेल्फिश है? सेल्फिश है? कैसे आप सर यहाँ पर? सेल्फिश। सर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड सर करता है या कोऑपरेटिव। सर ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है हाँ कि सर। कब। सर जब तक हमारा अपना मफाद पूरा हो रहा है तब तक हम कोऑपरेटिव है, लेकिन जब हमारे अपने इंटरेस्ट पे बात आती है तो हर इंसान सेल्फिश हो जाता है। सेल्फिश हो जाता है। गुडवान जी, ये किसने बताया? क्या नाम है आपका? सर तो आयशा। मैंने भी यही बात की थी कि डिपेंड अपॉन। गुड। ओके। चले जी, ये अब आपने पैसेज ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये अच्छा सा पैसेज भी, कॉपरेट विद अदर्स फॉर आर। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए हम नेचुरली, याद रखिएगा, अब यहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है हॉब्स, लॉक और रूसो की थ्योरीज। हॉब्स क्या कहते हैं जी? ह्यूमन बीइंग तो है ही लड़ाके। लॉक क्या कहते हैं? आप सबको पता है ना हॉब्स लॉक का आइडिया है? यस सहर सर। पता है ना ये हॉब्स यस कौन? सर। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सहर, अच्छा क्रैक किया है। Good one, Sahar. According to Thomas Hobbes in his book Leviathan, man is naturally selfish. कहना राइट, अकॉर्डिंग टू इट बिल्कुल लिखा जा सकता है। अच्छा, फाइका आपका आई आर है, नम्रा आपका भी आई आर है। रियलिज्म क्या कहता है यहाँ पे? ये बताएं जरा। फिर वो भी सेल्फिश ही वो कहता है। सेल्फिश ही कहता है। हाँ, और आइडियलिज्म क्या कहता है? सर वो तो कहता साधु वो है सब। कोऑपरेटिव कहता है। तो वो कोऑपरेटिव कहते हैं। ठीक है। तो आई आर वाले जो बच्चे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं इसे। बट एक जो मेच्योर आर्ग्यूमेंट है अहमद, वो ये है कि हम सिर्फ तब तक ही कॉपरेट करते हैं जब तक हमारा अपना मुफाद है। अच्छा, अब यहाँ पर भी ना एक चीज है, हम कॉपरेट कर रहे हैं, अब जरा समझिएगा आयशा, हम कॉपरेट कर रहे हैं मफाद परस्ती को मद्देनजर रखते हुए। अब हम क्या होंगे? सेल्फिश। मफाद सर परस्त। सेल्फ। चलो अगेन सेल्फिश। फिर सेल्फिश। सेल्फिश होंगे ना अगेन। बिल्कुल। ह्यूमन बींग्स दरअसल सेल्फिश हैं, ह्यूमन बींग्स कॉपरेटिव नहीं है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आपके पास सेल्फिश हैं क्योंकि देखिए ना, हम कॉपरेट भी करते हैं तो हम अपने मफाद को आगे रखते हैं। कोई ट्रैवल भी करता है जी, ठीक है, किसी के लिए तो कहता है जी चलो जी मुझे पेट्रोल डलवा कर दो, मैं तो तुम्हारे लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसे होता है कि नहीं? ठीक है। तो आमतौर पर ह्यूमन बींग्स आर नॉट कॉपरेटिव, ह्यूमन बींग्स आर सेल्फिश। एंड हिस्ट्री से आप इसके एग्जाम्पल्स उठा सकते हैं, करंट एग्जाम्पल उठा सकते हैं, यानी इस तरीके से आप देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बताइएगा। अच्छा, सेल्फिश एंड नास्टी, दे आर ओनली कोऑपरेटिव, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली जी, गुड वन। सो ये सेंड कर दें जी अपनी प्रेसेस, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग आप सबको मैं दे रहा हूँ, इसके बाद मैं आपकी प्रेसेस रिसीव नहीं करूंगा, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, सर ठीक है। वैसे इतनी गंदी है खुद देखने का दिल नहीं कर रहा। कोई मसला नहीं है जी, सर मुझे आपने ना फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर अभी गंदी की है तो आपको 1 घंटा दूंगा तो आप नीट भी कर देंगे, लेकिन मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने गंदी की है या नीट की है। फर्क ये पड़ता है कि आपके आइडियाज ठीक हैं कि नहीं, यही तो टाइम बाउंड आपको मैंने बनाना है। और जी, सो इस पे एक पैसेज लिख लेंगे आप सारे, यानी एक पैराग्राफ आपने 200 अल्फाज का लिखना है, हो जाएगा एवरीवन? बताइएगा। सो ये आपने जी पैसेज इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है और सर आपने, हम इसका स्टार्ट हॉब्स की स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं ना? आप कहीं से भी करें, टेंशन ही नहीं है कोई, ठीक है। आप रियलिज्म की थ्योरी उठा लें जी, आई आर की है हादी, ठीक है, आप वो ठीक है बता सर। दो, मसला ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आपके पास पूरी दुनिया है हादी, कहीं से भी स्टार्ट करो, अमेरिका की बात आप बता दो जी, ठीक है। ठीक है सर। भी आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि स्टार्ट ना बड़ा बेसिक सा ना करें, ह्यूमन बीइंग्स आर जी सेल्फी, ऐसे नहीं, थोड़ा जरा डायनामिक से यूनिक स्टार्ट जरा देकर है। चैट जीपीटी से हेल्प ले लें, चैट जीपीटी को कहें जी मुझे प्रोवाइड कर कोई अच्छी सी यूनिक स्टोरी, यूनिक एनेक्डोट स्टोरी, ठीक है, जिससे मैं अपने पैसेज का जरा पैराग्राफ का या इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ का वो बड़ी प्यारी प्यारी स्टोरीज आपको दे सकता है। मुझे नहीं पता, ये अभी मेरे माइंड में बस थॉट आया। तो इसी तरह इस तरीके से कीजिएगा, एक यूनिक स्टोरी, लेकिन वो स्टोरी 2 से 3 लाइनों की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं,
ठीक है, कोई कोटेशन से आप कर सकते हैं, जैसे थॉमस हॉब्स की है जी, लेवियाथन में उसने कहा है जी ह्यूमन बीइंग्स आर नास्टी ब्रूटिश एंड सेल्फिश। डेफिनेटली आप यहां पर बता सकते हैं। ठीक है, ये आप यहां पर बता, फिर कोई ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं जी, ह्यूमन बीइंग्स तो कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस कॉपरेशन के पीछे भी उनकी मफाद परस्ती छुपी हुई है, जिससे ये चीज साफ साफ जाहिर होती है कि ह्यूमन बीइंग्स कोऑपरेटिव नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से भी चीजें बताई जा सकती हैं। मेरी बातें समझ आ रही हैं जी, बताइएगा। सो फिर आप आगे से कंटिन्यू करेंगे, और आपने जो आर्ग्यूमेंट्स अगर प्रेजेंट, आपने ये नहीं सिर्फ बता दें जी ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है, ठीक है, जैसे आपने वो व्हील वाले में किया था जी, ह्यूमन बीइंग्स व्हील जी प्रोटेक्टर है, क्यों जी, क्योंकि इसे रिलीजन में प्रमोट किया गया है। ऐसे नहीं बताना, मुझे आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, मुझे एम्पिरिकल आर्ग्यूमेंट्स अभी बड़ी आपकी तरफ से चाहिए कि अगर तो ह्यूमन बीइंग सेल्फिश है, बताइए जी कहाँ कहाँ पे सेल्फिश है, एग्जांपल्स बताइए क्यों सेल्फिश है, ये बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी अपने आर्ग्यूमेंट्स में लेकर आइए। तो ये सब आप सबकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे तो आप में से किसी से नहीं हुआ जी, मुझे तो आपकी समझ नहीं आई आपने किया क्या है ऐसे वाले, और इतना मजे का ये ऐसे का पॉइंट था। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एसेस दैट वी हैव डन इन द रीसेंट मेमोरी। बट आपने वो ऐसे ही नहीं किया, बेड़ा गर्क कर दिया आपने सब। सो ऐसे अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, 12 बजे तक मैं आपका रिसीव करूंगा, उसके बाद मैं रिसीव नहीं करूंगा। और ये क्योंकि मैंने चेक करना है कल रात को, तो कोशिश करें कि आप आराम से इसे, इन दोनों चीजों को अटेम्प्ट कर दीजिएगा। ठीक सर है, आज रात तक ऐसे भेज दें, कल रात तक ये भेज दें। परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट रहेगा। ओके कल सर। ऐसे की क्लास ही ना होगी, कल ऐसे की, कल ट्यूसडे को आपकी छुट्टी हुआ करेगी, आपसे एक दिन क्लास हुआ करेगी, एक दिन छुट्टी हुआ करेगी। ठीक है, तो ताकि मैं एक तो सही से चेक भी आपका काम कर सकूं, और फिर ये है कि थोड़ा सा मुझे टाइम, आपको बताइए मैंने डिस्कस आपके साथ जो किया था, तो ये सारी चीजें होंगी जी। ऑलराइट, हो जाएगा सब कुछ। मुझे बताइएगा 9 तारीख से जी आपके टेस्ट शुरू हो रहे हैं, सुबह तक आपको इसका स्केड्यूल फराहम कर दिया जाएगा। कंपलसरी से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे। ठीक है, और इस तरीके से, और वो सारे बच्चे टेस्ट देंगे। हाँ, वो सुबह तक हो जाएंगे, किरत बेटा वो सुबह तक हो जाएंगे। और कल क्योंकि हमारी क्लास नहीं है, तो अगर कहीं पे किसी को समझ ना आएगा कोई टेस्ट वगैरह कि अगर मैंने कोई आपकी मिस्टेक निकाली है, तो कल आप मेरे साथ वन ऑन वन डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेक द टाइम, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सर जी मुझे मेरा टेस्ट नहीं समझ आया, क्यों आपने यहाँ पे कट किया, ये क्या मामला आता है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हाँ जी, आज पोल साइंस की क्लास थी, आज पोल साइंस की क्लास हो गई है, बिल्कुल हो गई है जी सहर, आज पोल साइंस की हो गई है जी क्लास। किधर गया जी पोल साइंस का ग्रुप? सर उर्दू की रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। बेटा वो ना रात तक होगी, क्योंकि अभी ना बैक टू बैक मेरी अभी इस टाइम ओके पर ना सर। क्लासेस हैं। मेरी शहर 4 बजे, मैं रिपीट कर देता हूँ जी, 12 बजे उर्दू की क्लास होती है, 4 बजे पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की क्लास होती है, 7:30 बजे एसए की क्लास होती है, और 9 बजे जर्नल साइंस एंड एबिलिटी सीएसएस 2027 की क्लास होती है। ठीक है, और करीबन 10:30 बजे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ मैं ऐसे वन ऑन वन करता हूँ, आज से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो 2-3 बच्चे हैं, लेकिन वो वही ऐसे जो आपके साथ आपको मैंने पढ़ाना है ना, पढ़ाया है, ये जो प्रेस आज हमने किया, बस वही स्टार्ट होगा। 200 अल्फाज, बिल्कुल सही है। सही है, तो ये है। लेकिन उर्दू की क्लास हर ऑल्टरनेट डे पर होती है, जैसे आज हुई है कल नहीं होगी। ठीक है, तो जब उर्दू की क्लास होगी तब प्रेस पॉलिटिकल साइंस 4 बजे होगा क्लास, और जब उर्दू की क्लास नहीं होगी तब पॉलिटिकल साइंस 3 बजे होगी। ठीक है, तो कल, आज जैसे पॉलिटिकल साइंस 4 बजे हुई है, अब आने वाली कल ट्यूसडे को पॉलिटिकल साइंस की क्लास 3 बजे होगी। ठीक है, हाँ पॉलिटिकल साइंस डेली होगा। सही है, वो यूके यूएस वाला जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स करवा चुका हूं ना, वो नहीं मैं फिर करवाऊंगा, वो आपको मैं लेक्चर्स उसके फराहम कर दूंगा, अपलोड आपके जीएस जो गूगल क्लासरूम है, क्या कहते हैं जी गूगल क्लासरूम को, जीसीआर ना, जीसीआर पे मैं अपलोड कर दूंगा वो लेक्चर्स। ठीक है, जो आपने लाइव लिए हुए हैं सीएसएस वाले। ठीक है, जो नए हैं आलमंड हो गए, और इधर उधर वाले 2-3 और कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए, फिर हिस्ट्री हो गई, गांधी की और कायदे आजम साहब की स्ट्रैटेजीज को कंपेयर करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो नए हैं, तो वो सारे मैं आपको टॉपिक्स ही करवा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद सीधा हम एजुकेशन स्टार्ट कर देंगे। एजुकेशन थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन विल आई ट्राई माय बेस्ट। ऑलराइट जी, क्लियर है? कोई सवाल आपका अगर है, या कोई अगर किसी तरीके के भी कंफ्यूजन में है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। सर पंजाबी नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रही है। पंजाबी ये जो मंडे आ रहा है, ओके। ओके सर। लेकिन वो टाइमिंग 11 बजे होगी, कोई बात नहीं सर, हो जाएगा। वो टाइमिंग 11 बजे होगी, वो आपने 11 से कोई 12:30 बजे तक कोई 1.5 घंटे की क्लास होगी। सो आप ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको पता है दिन के टाइम पे कोई स्लॉट है ही नहीं अवेलेबल। सो इस वजह से ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
सो आई एम एंडिंग द क्लास जी। आप सबने प्रेसेस जो नहीं सेंड की सेंड कर दें, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि अब आप सुबह सहरी के टाइम पे प्रेसियाँ सेंड कर रहे हो नीट बना के, वो नहीं मैंने चेक करनी। अभी जो बनाई है वो सेंड कर दें, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर गंदी भी आपने किया तो, ठीक है। सो ये देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, आई एम एंडिंग द क्लास। आप सबके साथ अभी कल पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मुलाकात होती है, और टेस्ट का स्केड्यूल सुबह सहरी तक शेयर हो जाएगा आपके साथ। टेस्ट तैयार करना शुरू कर दीजिए आप सारे, और वो सारे टेस्ट देंगे, ठीक है। वो इसमें कोई नहीं होगा सर जी मेरे ऊपर इंडिविजुअली फोकस करें, वो आप सबके लिए ज़रूरी है कि आप वही टेस्ट दें, क्योंकि हम अपना 100% आप और मैं उसी पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो इसी चीज़ को आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, मैं क्लास एंड कर रहा हूं।